Hi, in this session we will discuss Weka, a data mining tool to perform different data mining algorithms in this session. Let's start this session. The content used in this session has been taken from the technologyforge.net and the author is Mark Polinsky. So his PPT has been used to explain the concept of Weka in this session. So Weka is a tool which is developed at a University of Weka. This is the university which is in the New Zealand, and the students of this university has developed this tool, and this is an open source tool which is used to implement all data mining algorithms. सो बेसिकली इसकी जो हिस्ट्री है इस टूल डेवलपमेंट की वो अपने आप में बड़ी मोटिवेटिंग है. तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ वकाइटो में जैसे आप बिग डेटा पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ वकाइटो में एक कोर्स शुरू हुआ जिसका नाम था डेटा माइनिंग, और उस कोर्स के लिए बच्चों को अलग अलग असाइनमेंट दी गई और उनको डेटा माइनिंग के जो जावा के प्रोग्राम्स थे वो लिखने के लिए दिए गए. सो द स्टूडेंट इंप्लीमेंटेड ऑल दोज एल्गोरिथम्स इन जावा एंड दे प्रोड्यूस्ड वेरी वेल कोड. And then all these programs which are used to implement different data mining algorithm club together in a tool, and that tool is called Weka. So this is very motivating, and this is the bird which is very commonly available in the New Zealand. So on that bird they named it this tool as a Weka speak. So first of all you need to install this tool, and as I have already told you that this tool is written in Java, so you need to install JVM, and this tool is very light and can easily be installed on your machine. After installing this tool, there are some dataset which are already available in this particular tool. And one such commonly used dataset is Fisher Iris flower dataset. So we will discuss that dataset briefly, and then we will discuss that how we can apply basic data mining algorithms on this dataset. So this dataset is about flowers, and it contains three species of the flower. One species is called as stosa, another is versicolor, and third one is virginica. तो ये डेटा सेट फ्लावर के बारे में है. 3 तरह के फ्लावर का डेटा सेट इसमें अवेलेबल है, एंड फॉर एवरी टाइप ऑफ फ्लावर वी हैव 50 इंस्टांसेस. It means that there are total 150 records in the data set, and out of that those 150 records there will be 50 records for stosa, 50 for versicolor, and 50 for virginica. There are 3 categories which are available in this data set. And the scientist has found that on the every flower has 2 important components. One is called as sepal and another is called as petal. So they identified that on the basis of sepal length and sepal width, and on the basis of petal length and petal width, we can identify the species of the flower, virginica. So they prepared a data set based on that values. So you can check that there are only 5 records in these examples, but total they have 150 records. Out of these 5 records, first column is instances which simply indicate 1 to 5. Second column is sepal length, sepal width. First column sepal length, sepal width, then petal length and petal width. So there are 4 input attribute which decide the final output attribute, that is species. And you can check that the species of the flower is decided by the values of these 4 attributes. मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे यहाँ पे फ्लावर की क्लास को प्रिडिक्ट करना हो, मुझे बताना हो कि ये फ्लावर किस कैटेगरी का होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताना है फ्लावर को तोड़े बिना या उसको लैब टेस्ट पे लिए बिना क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि ये फ्लावर किस कैटेगरी का होगा या फ्लावर किस स्पीसीज का होगा? कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हमें क्या पता होना चाहिए? हमें इनकी चारों का वैल्यूज पता होना चाहिए. कौन से 4 एट्रीब्यूट की वैल्यू पता होनी चाहिए? सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ. अगर मुझे उसके 4 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू पता है तो मैं उसकी क्लास एट्रीब्यूट क्या कर सकता हूं? प्रेडिक्ट कर सकता हूं बेस्ड ऑन माय 150 एग्जांपल्स इन द डेटा सेट. सो आई हैव एक्सपीरियंस. व्हाट इज द एक्सपीरियंस इन दिस केस? Data. 150 records. 150 records will become experience. What is the task in this case? To predict the class or to predict the species. And what is the performance? How accurately I will predict the class or species, that will become the
performance in this case. So as I have more data, my accuracy for prediction will be improved. If I have 150 record, I will able to predict with some good accuracy, and this data set is balanced data set which have 50 record for each species, and on that basis I will able to predict it. तो मुझे supply क्या करना है? Input attributes, sepal length, sepal width, petal length and petal width. That's why it is called as input attributes. Predict क्या होगा? Species. That's why it is called as output attribute and class attribute. अब मुझे बताइए कि is this a problem of classification or it is a problem of regression? This is problem of classification because we are predicting 1 out of 3. हम स्टोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका में से कोई एक चीज बता रहे हैं, ए बी सी में से कोई एक बताना है, तो दिस इज ए केस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. इज इट ए सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड? इट इज सुपरवाइज बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग करेक्ट आंसर्स. मुझे 150 फ्लावर का एग्जैक्ट डेटा पता है, तभी मैं किसी अननोन फ्लावर की प्रिडिक्शन कर सकता हूं. सो दिस इज द डेटा सेट विच वी आर यूजिंग, एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन प्रिडिक्ट इट टू आइडेंटिफाई दैट what will be the species of the flower, and we can build a decision tree which can use sepal length, sepal width, petal length and petal width as the input attribute, and on that basis I can build a tree which can predict that कि ये flower किस कैटेगरी का होगा. तो ये ट्री कैसे बिल्ड किया जाएगा वो हम आने वाले सेशन में सीखेंगे, बट अभी हमारा इंपॉर्टेंट था कि ये डेटा सेट कैसा है और इसको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं. So now this data set is available most appropriately in an Excel file. But it is important to learn that how we can load our Excel file in this Weka tool. So the topic is preparing the data set for analysis, and it is important that Weka use, normally we have a data set in Excel file, and the extension of Excel is XLS file we have which is available, but we cannot directly process Excel file in Weka. So Weka can process two type of file. You can write down that point on your notebook. Weka can process two type of file. One is ARFF file and second is CSV file. So there are two type or two formats of file which are supported by Weka. ARFF stand for attribute relation file format. Note कर लीजिए. ARFF stand for attribute relation file format. Values. So CSV file stand for कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जिसमें जो कॉलम्स है वो एक दूसरे से कॉमा सेपरेटेड होंगे, एंड एट्रीब्यूट रिलेशन फाइल फॉर्मेट. लेकिन हमारे पास कौन सी फाइल है? एक्सेल की. सो ये अब सीखना जरूरी है कि किस तरह से हम एक्सेल की फाइल को ARF में या CSV में कन्वर्ट करेंगे. तो उसके लिए प्रोसेस है कि आप एक्सेल में फाइल को ओपन कीजिए एंड देन गो टू सेव एज ऑप्शन, and under save as there is a one option called as other format, and when you select other format, select CSV, that is comma separated file, and save that file as a CSV file. So this is very simple. कोई भी एक्सेल की फाइल ओपन कीजिए, सेव एज में जाके अदर फॉर्मेट में CSV सेलेक्ट कीजिए और उस फाइल को एज ए CSV सेलेक्ट कर लें, तो आपकी फाइल CSV में सेलेक्ट हो जाएगी. देन यू कैन अपलोड दैट फाइल डायरेक्टली इन योर Weka. So आपने फाइल को CSV में बना लिया, and when you prepare that Excel file in CSV file, this file will appear like this, comma separated. हर रो की वैल्यूज में जो कॉलम है वो एक दूसरे से comma separated है, and every column has a heading. You can check that first column is instance, second is sepal length, sepal width, petal width and species. कॉलम के हेडिंग पहले आ गए और बाद में रोज है. Now every row has a column which is separated by comma. One is instance, 5.1 is sepal length, 3.5 sepal width and so on, and last is setosa which is the species. और इस तरह से आपको 150 records मिलेंगे जो कि आपका एक फुल डेटा सेट होगा, और ये एक्सेल की फाइल किसमें कन्वर्ट हो गई है? CSV में कन्वर्ट हो गई है. अब CSV में कन्वर्ट करने के बाद हम अपना Weka जो है वो स्टार्ट करेंगे, and when you start Weka, there are 4 important options in the Weka which are useful. First option is Explorer. You can write down that point on your notebook. There are 4 options. First is Explorer, second is Experimenter, third is Knowledge Flow, and the fourth one is Simple CLI. Explorer, most data mining algorithm are available in Explorer, so we are going to use Explorer significantly
in these labs. So हमारे लिए जो most common और useful है that is explorer. Then experimenter, अगर हमें कुछ और configuration change करनी है, कुछ और experiments करने हैं change setting के साथ, तो experimenter है जो कि रिसर्चर यूज करेंगे. नॉलेज फ्लो भी डेटा को फ्लो को एनालाइज करने के लिए कि हाउ द डेटा इज पासिंग फ्रॉम वन एल्गोरिथम टू अनदर एल्गोरिथम और वन स्टेज टू अनदर स्टेज, वी कैन यूज नॉलेज फ्लो. एंड अगर आप इसको कमांड लाइन इंटरफेस पे चलाना चाहते हैं तो देन फोर्थ ऑप्शन इज सिंपल CLI, सिंपल कमांड लाइन इंटरफेस. सो फर्स्ट इज एक्सप्लोरर जिसमें सारे डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम है. सेकंड वन इज एक्सपेरिमेंटर विच इज यूज्ड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग एंड टू डू सम एक्सपेरिमेंटेशन. Knowledge flow is used to analyze the flow of data between one stage to another stage, and command line interface is the fourth option. But for the beginners, for the just to start the working on Weka, we will use Explorer option. तो आज हम Explorer के बारे में देखेंगे कि किस तरह से आप एक फाइल को डेटा माइनिंग के लिए या मशीन लर्निंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं विद द यूजर एक्सप्लोरर. सो व्हेन यू क्लिक ऑन एक्सप्लोरर देयर आर नंबर ऑफ टैब व्हिच आर अवेलेबल एंड यू कैन चेक दैट फर्स्ट टैब इज प्री प्रोसेसर. So first operation in machine learning is pre-process, in which we have to load the file and we have to make file available for compatible for data analysis. So pre-process is the first stage. Can you read the values of another tabs? Second tab is classify, classification. Third one is clustering. Another data mining concept is clustering. Fourth one is association mining. Fifth one is select attribute. If we have large number of attribute and we want to select only 5, 6 or some group of attributes, or we can make selection on the basis of attributes, then we have this tab. And final one is visualize to see the graph and all those things. लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि जितने भी टैब हैं वो सारे डिसेबल हैं क्योंकि अभी डेटा हमने अपलोड नहीं किया. वंस यू अपलोड द डेटा ऑल दीज टैब विल बिकम इनेबल एंड यू कैन यूज दोज टैब्स. So in this session we will discuss how we can apply preprocessor. So in preprocess there is one option called as, कौन सी ऑप्शन यूज करेंगे आपको क्या लगता है? ओपन फाइल. और कौन सी फाइल ओपन करेंगे हम इसमें? CSV फाइल. So we click on open file and we will select our CSV file, and once you click select our CSV file, that file automatically loaded into the tool. And as soon as I loaded my file, you can check all the tab become enabled. The data is populated. So let's understand this data set. It shows relation, the name of the table. It is Fisher Iris data set. This is the label or the table or the name of the file which we are using. So data set is labeled as this. Instances, इसका मतलब क्या होगा? Total number of records. So we know that there are 150 records, so it shows 150 records. Attributes, how many attributes are there? 6. There are 6 columns and you can read the values of those columns. Here you can note down that the first column is instance, second is sepal length, third is sepal width, petal length, petal width and species. So there are 6 columns. And these windows are also very important, and this also provides some important information. And you know that basically instances are the numbers 1 to 50 and they will not play any role in the data analysis. तो data analysis में तो 4 input attribute है और एक output attribute है. Number 1 to 50 just a serial number. So they are not that important. So we can ignore that attribute just by click on the option called as remove. So select the attribute instance and click the button remove. So this attribute will be removed from the database and now we will have only 5 attributes. So we can remove that attribute from the data set. Then when we select a data set, it also this is the data which will appear after removing instance column. अब कितने attribute हो गए? 5. कौन सा remove हुआ? Instance. Why we remove instance? Because it is not important. These are just serial number and that serial number will not play any role in data analysis. This option is important. So this particular Weka page will also provide us the information about attribute statistics, class designator and attribute histogram. इसको देखते हैं. What attribute it shows? अभी किस attribute के बारे में बता रहा है ये? Sepal length.
तो आपके पास जितने भी एट्रीब्यूट हैं, आप कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे, यहां हमने सेपल लेंथ सेलेक्ट किया हुआ है। सो जो एट्रीब्यूट आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी जितनी भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो आपको इस विंडो में दिखाएगा। क्या आ रहा है उसको थोड़ा फोकस करते हैं। सो इट शोज व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन दैट कॉलम, मिनिमम वैल्यू बता रहा है। इट ऑल्सो डिस्प्ले मैक्सिमम वैल्यू इन दैट कॉलम, इट ऑल्सो डिस्प्ले मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको जो भी कॉलम सिलेक्टेड है, जो भी कॉलम सिलेक्टेड है उसका मिनिमम, मैक्सिमम, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। सो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी डेटा टाइप ये न्यूमेरिक दिखा रहा है और इसका ये हिस्टोग्राम भी डिस्प्ले करेगा। और इस हिस्टोग्राम में आपको ये बता रहा है कि क्लास एट्रीब्यूट स्पीसीज है, कि स्पीसीज के कॉरेस्पॉन्डिंग there are three possible values of species. One is stosa, there is versicolor, and third one is virginica, which all these three classes are indicated by different colors. तो ये आपको बता रहा है कि अगर सेपल लेंथ की वैल्यू 4.3 से लेके इस रेंज में है तो सारे के सारे 16 रिकॉर्ड्स स्टोसा के हैं। अगर इसकी वैल्यू बिटवीन दिस टू दिस रेंज है तो देयर आर सम रिकॉर्ड फॉर कैटेगरी 1, सम रिकॉर्ड फॉर कैटेगरी 2 एंड सम रिकॉर्ड फॉर कैटेगरी 3 एंड टोटल नंबर इज 30. If the range is between this and this, then this is the number for category 1, this is for category 2 and this is for category 3. तो आपको एक visual analysis provide कर रहा है in term of histogram, and if you check that if sepal length is more than this value, so then you can check there is only one category of the flower, that is 7. तो आप यहां से एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू कम है तो क्लास A है और अगर इसकी वैल्यू हाई है तो वो क्लास C है और बीच में कुछ मिक्सिंग है. सो दिस ग्राफिक्स इज एक्चुअली वेरी यूजफुल एंड दिस आल्सो मेक गुड आइडिया अबाउट द एनालिसिस ऑफ डेटा. आप यहां देख के समझ सकते हो ना कि अगर इसकी वैल्यू कम है, जैसे 4.3 से अभी शुरू हुआ था, तो सारे एक ही कैटेगरी के हैं, विच इज टोसा इन दिस केस. और अगर इसकी वैल्यू हाई है तो भी सारे तीसरी कैटेगरी के हैं, लेकिन अगर बीच में है वैल्यूज तब हमारे पास मिक्सिंग है. तो वी कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट. So this is the detail about those analysis. So here you can check that the values range. So it shows that here it is stosa, at the top it is virginica, and between those there are some intermixing, and in that way the values of the attribute are distributed across different values of sepal length, the column which we have selected, and these values are plotted against a class attribute, and the class attribute is, कौन सा class attribute है यहाँ पे? स्पीसीज, जिसके बेसिस के ऊपर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं. सो दिस इज द ऑल द हिस्टोग्राम अवेलेबल एंड फाइनल इज द स्पीसीज, एंड दिस शोज दैट देयर आर 50 एट्रीब्यूट फॉर कैटेगरी 1, 50 फॉर कैटेगरी 2 एंड 50 फॉर कैटेगरी 3, एंड ऑल दीज 4 एट्रीब्यूट्स कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट दोज क्लास एट्रीब्यूट्स. This also shows one important concept called as distinct and unique values. So with basic statistics is also provide the information about distinct and unique. You can write down on your notebook concept of distinct and unique. So here we have to understand the concept of distinct value, let us consider sepal length. तो हमारे पास sepal length यहाँ पे 5.1, 4.9, 4.7, 4.6 और 5 है. कितने वैल्यूज है? 5 है, और पांचों की पांचों वैल्यू एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है. सो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन दिस केस आर 5. दिस फर्दर एक्सप्लेन्ड इन दिस एग्जाम्पल. यहां पे आप देखिए टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है. जो हमने रेड के साथ कॉलम हाईलाइट किया है सेपल लेंथ, उसमें देखिए डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, अलग अलग वैल्यूज कितनी मिल रही हैं. 1 इज 4.3, एक 4.4 है, एक 4.5 है और एक 4.6 है. सो देयर आर टोटल 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन दिस केस. एंड जब आप वैल्यूज डिस्टिंक्ट देखते हैं, अलग अलग वैल्यूज देखते हैं, तो देयर आर सम वैल्यूज जो दूसरी बार रिपीट नहीं हो रही और कुछ वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं. ऐसी कौन सी वैल्यू जो रिपीट नहीं हो रही? 4.3 और 4.5. तो जो वैल्यूज रिपीट पूरे डेटा सेट में नहीं होंगी वो वैल्यूज क्या बोली जाएंगी? यूनिक. और डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या होंगी? टोटल पॉसिबल वैल्यूज अवेलेबल इन दैट कॉलम. तो इसमें टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यूज जितनी 7 रिकॉर्ड, सो जो 7 रिकॉर्ड डिस्प्ले किए गए हैं, इसमें से टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है? पॉसिबल वैल्यूज एट्रीब्यूट विच कैन हैव, इट इज 4.3, 4.4, 5 एंड 6.
How many distinct value we have? 4. And how many unique values we have? 2. So there are 4 distinct and 2 unique. ये अभी 7 रिकॉर्ड है, लेकिन अगर हम टोटल 150 रिकॉर्ड चेक करेंगे तो उसमें से कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी आपको? बोलो, लिखा हुआ है ना 35, और कितनी यूनिक वैल्यू मिलेंगी? 9. तो इसका मतलब 150 कॉलम में आपको 35 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो मिलेंगी. वो 35 वैल्यूज रिपीट भी होंगी टोटल 150 रिकॉर्ड में, लेकिन ऐसे 9 वैल्यूज होंगी जो रिपीट नहीं होंगी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड डिस्टिंक्ट. समझ लग गया अब आपको? सो टोटल पॉसिबल वैल्यूज 150 में से 35 है, जिसमें से 9 ऐसी वैल्यूज हैं जो कभी रिपीट नहीं होंगी. अगर फिर भी डाउट है तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं. टोटल पॉसिबल वैल्यू चेक कीजिए, 4.3, 4, 5, 6, 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, और इसमें से जो यूनिक मुझे नजर आ रही हैं वो सिर्फ 2 हैं. कोई और केस लिखते हैं. आप मुझे बताओगे इसमें से अगर मैं पेटल विड्थ कंसिडर करूं, अगर मैं पेटल विड्थ कंसिडर करूं लास्ट कॉलम, तो कितनी डिस्टिंक्ट है, कितने यूनिक है? सभी अपनी कॉपी पे लिखना. 1 डिस्टिंक्ट, 0 यूनिक. इफ आई कंसिडर पेटल लेंथ, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, हाउ मेनी यूनिक? So very good. So there are 3 distinct values in petal length. One is 1.4, 1.3, 1.5. 3, 5 and 4. तो 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं. These are 3 distinct values. लेकिन यूनिक वैल्यूज कितनी है? सिर्फ 2. One is 1.3, another is 1.5. सबको ARFF फॉर्मेट. क्या थी फुल फॉर्म इसकी? एट्रीब्यूट रिलेशन फाइल फॉर्मेट. सो सबसे पहले ये रिलेशन का नाम बताएगा, और उसमें @रिलेशन, आप नीचे जो लिखा है ना वहां फोकस करना है इस पोर्शन में. सो कंसंट्रेट ऑन दिस पोर्शन. सो फर्स्ट इज @रिलेशन. ये आपको डेटा सेट का नाम बताएगा. @रिलेशन की ये डेटा सेट जो है ये फिश और आइरस का डेटा सेट है. सो रिलेशन का मतलब हो गया टेबल का नाम या रिलेशन का नाम या डेटा सेट का नाम. देन @एट्रीब्यूट, ये किसके बारे में बताएगा? कॉलम के बारे में. तो ये आपको बताएगा @एट्रीब्यूट. पहला कॉलम जो है वो कौन सा है? सेपल लेंथ. किस टाइप का है? न्यूमेरिक. अनदर कॉलम इज सेपल विड्थ जो कि न्यूमेरिक है. थर्ड इज, बोलो मेरे साथ, जो कि न्यूमेरिक है. देन एट्रीब्यूट पेटल विड्थ जो कि न्यूमेरिक है. सो हाउ मेनी एट्रीब्यूट हियर वी हैव? दीज आर 4 एट्रीब्यूट एंड दीज आर इनपुट एट्रीब्यूट, और उसके बारे में इसने उसकी डेटा टाइप बता दी. Then we have attribute called as species, that is 5th attribute. और ये attribute में there are only 3 possible values. तो इसमें सिर्फ 3 values आ सकती हैं. One is stosa, another is versicolor, third one is virginica. तो ये numeric नहीं है. इसमें जो nominal values appear होंगी that is either stosa और versicolor और virginica. उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा है कि भाई इन तीनों में से कोई एक चीज आ सकती है. तो इसमें 5 एट्रीब्यूट यहां क्या कर दिए? एक्सप्लेन कर दिए. सो पहला हुआ @रिलेशन जो क्या बताएगा? नेम ऑफ द डेटा सेट. देन attribute which will give the name of the attribute and data type of the attribute. So it will indicate input attribute then output attribute in the same order in which they appear on the data file. So उसी sequence में ये display करेगा. First is sepal length, then sepal width, petal length, petal width, और उसकी data type numeric हुई, and final is the attribute species with the attribute called as setosa, versicolor, virginica. These are 3 possible values, and then it shows @data. इसके बाद जितना भी डेटा है वो कॉमा सेपरेटेड है, एंड इट इज द सेम CSV फाइल जिसमें आप देख सकते हैं 5.1, 3.5, 1.4.2 एंड setosa. There is when we start Weka, there are 3 main tab. One is program, another is visualization, third is tool. So there is one option called as tool, and in this tool option there is first option called as ARF viewer. You can write down that option. यह है कि आप डेटा के कंटेंट को अगर व्यू करना चाहते हैं, आप सिर्फ डेटा को क्या करना चाहते हो? देखना चाहते हो, तब आपको फाइल लोड करने की जरूरत नहीं है. अभी भी अपने डेटा को देखा है, उसको समझा है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ा था? डेटा को अगर आप शुरू से देखें तो इस डेटा को हमें क्या करना पड़ा था? प्री प्रोसेस में जाके फाइल को
लोड करना पड़ा था, और लोड होने के बाद ही हम डेटा को रीड कर पाए थे या समझ पाए थे। आप समझिए कि सपोज आई हैव 1 लाख रिकॉर्ड्स या 1 करोड़ रिकॉर्ड, तब फाइल को लोड करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। एंड आफ्टर लोडिंग दैट फाइल यू एनालाइज दैट कि ओ ये फाइल तो मैंने लोड नहीं करनी थी, मैंने तो कोई और फाइल लोड करनी थी। तो वो कहता है आपको कि आपको अगर फाइल बहुत बड़ी है तो आप लोड करने से पहले भी अपनी फाइल के कंटेंट को क्या कर सकते हैं? व्यू कर सकते हैं। सो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो इसके लिए ये बोलता है कि आपको फाइल लोड करने की जरूरत नहीं। लोड जब करते हैं तो आपने देखा है कि वो उसका स्टैटिस्टिकल एनालाइज भी करता है, तो उसको मैक्सिमम, मिनिमम, मीन सब कुछ निकालना पड़ता है। सो वो और टाइम लगेगा, कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, एंड एट द एंड यू आफ्टर डूइंग ऑल दिस कंप्यूटेशन यू नो दैट कि ये तो फाइल मेरे काम की नहीं थी। तो बेटर है कि आप पहले डेटा को व्यू करके जस्टिफाई कर लें, कंफर्म कर लें कि हाँ मैंने इसी के ऊपर काम करना था। तो ये वही ऑप्शन है जो आपको बताती है कि आप डायरेक्टली डेटा को व्यू कर सकते हैं विदाउट लोडिंग दैट फाइल। टूल में जाइए, ARF व्यूअर में जाइए, जैसे आप ARF व्यूअर सेलेक्ट करेंगे ये फाइल ओपन करने के लिए बोलेगा और ये आपके जस्ट कंटेंट डिस्प्ले कर देगा। यहां कोई मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालेगा, कोई ग्राफ नहीं प्लॉट करेगा, जस्ट आपका जो डेटा है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। सो दिस इज ARF व्यूअर। Similarly, there are also one option called as visualization, जो किसके लिए होगी? ग्राफ्स को देखने के लिए। तो अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं डिफरेंट ग्राफ्स बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो आप विजुअलाइजेशन ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और इसमें आप प्लॉटिंग एट्रीब्यूट में एक्स और वाई एट्रीब्यूट डिसाइड करेंगे, और जो भी आप एक्स और वाई सेलेक्ट करेंगे उसके बीच में ये जो ग्राफ है या जो प्लॉट है वो ग्राफ प्लॉट करके आपको दे देगा। So there is only two important options. One is x-axis, another is y-axis. You can select any column as a x-axis, any column as a y-axis, and it will plot a graph between that. There is one more option called as jitter. You can write down that point on your notebook. Jitter. Jitter is used to add a noise to the data set. Jitter can be used to add the noise to the data set for better analysis. इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार आपका डेटा बहुत बड़ा है और आपने ग्राफ प्लॉट किया, सो देन यू मे फाइंड आउट दैट देयर आर सम सेल विच जस्ट सिंपली ओवरलैप ऑन वन अनदर। आप उस बहुत ओवरलैपिंग है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे, तो जिटर इंक्रीज करके क्या होगा? थोड़ा नॉइस ऐड हो जाएगा, थोड़ी वैल्यूज में ऊपर नीचे वो शिफ्ट हो जाएंगी, थोड़ा उसमें प्लस या थोड़ा उसमें माइनस कर देगा, सो दैट की जो एक्सेक्ट ओवरलैप हो रहा था वो ओवरलैप पहले से कम हो जाएगा, एंड यू कैन विजुअलाइज योर डेटा प्रॉपरली। सो जिटर बाय डिफॉल्ट देयर इज जीरो नॉइस, बट बाय इंक्रीजिंग द जिटर आप नॉइस बढ़ा देंगे, और आप देखेंगे कि जिटर जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपके सेल थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे, because some noise has been added. So now you can question that there is what is the fun to add the noise. So the fun to add the noise is to make better analysis, because sometimes the value just overlap and you may not able to analyze or see the values properly. So in that case jitter may be useful to them. We also have a visualize option as the last tab under pre-process, and it performs similar task. It shows different graphs and you can use those graph and directly understand those graph and plot those graph on your reports. So this is all about our first tutorial, and this tutorial give us the idea that how we can prepare our data set for Weka, and under next tutorial we will discuss how we can analyze those data in the Weka data sets. Clear? So now we will try to demonstrate all those points डायरेक्टली ऑन द मशीन, दैट की किस तरह से काम किया जाएगा, सो दैट जब आप लैब में जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सो आई ऑल्सो हैव वेका इंस्टॉल्ड ऑन माई मशीन। सो दिस इज माई फर्स्ट विंडो विच अपीयर। सो देखिए इससे है ना, सो वी हैव वेका, GUI चूजर, एक्सप्लोरर, एक्सपेरिमेंटर, नॉलेज फ्लो और कमांड लाइन इंटरफेस। तो क्या यूज करना है इसमें से? एक्सप्लोरर। सो व्हेन आई क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, अगेन इट इज द सेम विंडो विच वी हैव डिस्कस्ड, प्री प्रोसेस एंड ऑल अदर टैब आर डिसेबल्ड। सो फर्स्ट टास्क विल बी टू ओपन द फाइल। सो मैंने आपको बोला कि फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है
डेटाबेस में। सो जस्ट क्लिक ऑन ओपन फाइल और आपको देखना है कि आपने वेका कहाँ इंस्टॉल किया है। सो मेरे केस में वेका प्रोग्राम फाइल के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो मैं प्रोग्राम फाइल में गया, वेका फोल्डर पे गया। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, सो देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज डेटा। सो आई क्लिक ऑन डेटा। तो ये सारी ARF फाइल बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है विच वी कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर डेटा एनालिसिस। और आप यहाँ देखते हैं एक आयरस नाम की भी फाइल अवेलेबल है जो कि ये सेम फ्लावर का डेटा सेट है जिसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। सो आई सिलेक्ट माई ARF फाइल बिकॉज इट इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड आई सिंपली सिलेक्ट ओपन। सो एज सुन एज आई ओपन इट, आप देखिए कि इसने उसी समय मुझे बता दिया कि हाउ मेनी इंस्टेंस आर देयर, 150 इंस्टेंसेस आर देयर। देयर आर टोटल 5 एट्रीब्यूट्स and it shows sepal length, sepal width, petal width and class attribute। और जो भी कॉलम सेलेक्ट करूंगा उसका ये एनालिसिस दे देगा। सेम एनालिसिस है जो अभी स्लाइड में हमने देखा। ये बता रहा है कि 35 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, 9 यूनिक वैल्यूज है, न्यूमेरिक है, मिनिमम दिस, मैक्सिमम दिस, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड इट ऑल्सो शोज माई विजुअलाइजर and this is the class attribute। if I change the column to sepal width, तो ये उसका एनालिसिस है जिसमें ये बता रहा है कि टोटल डिस्टिंक्ट 23 है, यूनिक 3 है, और उसका ग्राफ उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। तो आप हर कॉलम को सेलेक्ट कर सके उसका एनालिसिस देख सकते हैं। एंड फाइनल इज द क्लास एट्रीब्यूट जिसमें टोटल आप चेक करते हैं कि 50-50 सभी टाइप के एट्रीब्यूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसके बाद हमने ये एक और ऑप्शन के बारे में देखा था, विजुअलाइज, जो कि आपको डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट करेगा और आप बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं और पर्टिकुलरली वैल्यूज को आप सिलेक्ट करके इनके ग्राफ्स को देख सकते हैं। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू क्लास एट्रीब्यूट। यू कैन ऑल्सो ऐड जिटर एंड इट विल चेंज द वैल्यूज लिटिल बिट। तो एज आई ऐड जिटर ये वैल्यूज थोड़ी स्कैटर हो गई क्योंकि हमने नॉइस ऐड कर दिया। और अगर मैं नॉइस बिल्कुल ऐड नहीं करता तो आप देखते हैं कि दे आर ऑल इन स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ जिटर। और हमने ये भी देखा था कि विदाउट लोडिंग द डेटा वी कैन ऑल्सो एनालाइज इट विद द हेल्प ऑफ टूल्स। इन टूल वी हैव ARF व्यूअर। सो सिंपली select ARF व्यूअर and then you can select the file and you can open a file, and in the same way you can select the file and it open it। So there is no analysis in this case, there is no standard deviation, maximum, minimum calculation in this case, but it is just important you can just see your content in a single go. So this is about our first. This is also visualization plot which is used to plot different models or different data sets. By selecting the data you can plot any graph based on that. So this is x-axis, this is y-axis, and this is the jitter which we can increase। So आप देख सकते हैं as I add the jitter। Thanks for watching this video.